ایک اہم منصوبے فائلوں میں دفن ہیں، پیش رفت فیزیبلٹی تخمینے تک ہی محدود ہیں۔ نظر انداز کیے گئے پروجیکٹس میں پارکنگ پلازا، نیشنل سپورٹس کمپلیکس، ڈرینیج، کیٹل مارکیٹ، نئے ہسپتالوں کی تعمیر اور نئی کالجز یونیورسٹیوں کا قیام بھی شامل ہے۔ پنجاب میں نجی سرمایہ کاروں کی مدد سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی تکمیل حکومت کے لیے دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شہر سمیت صوبے بھر میں 5 کھرب سے زائد مالیت کے منصوبے صرف سرکاری افسران کی میز اور فائلوں تک ہی محدود ہیں۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں 4 ارب روپے مالیت سے بننے والا پارکنگ پلازا اور شہر سمیت پنجاب بھر میں نئے کالجز اور یونیورسٹیز کے منصوبے بھی پائپ لائن میں ہیں۔ شہر میں 4 ارب روپے مالیت سے کیٹل مارکیٹ کی تعمیر کا منصوبہ بھی کاغذی کارروائی تک محدود ہے۔ پنجاب میں 1 کھرب سے 10 نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر بھی کاغذوں میں ہے، جبکہ شہر میں واٹر میٹر کی تنصیب، صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے فائلوں تک محدود ہیں۔ پنجاب میں تاحال صرف 28 ارب روپے مالیت کے میگا منصوبے آپریشنل ہیں۔ لاہور میں صفائی کے نظام میں تبدیلی کا یہ معاملہ ہے۔ صارفین سے صفائی فیس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ذریعے کرنے کی تجویز سامنے آ چکی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں صفائی کا نظام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے مجوزہ نظام میں گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا، جس کے لیے صارفین سے ماہانہ فیس بھی وصول کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صارفین سے صفائی فیس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ذریعے کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ بجلی کے بلوں میں فکس رقم یا تناسب کے مطابق فیس وصول کی جائے گی۔ بجلی کے بل کے مطابق 3، 5 یا 10% کے تناسب سے فیس وصول کی جائے گی، جبکہ فکس رقم کی صورت میں 1050 روپے کے بل پر 25 روپے فیس وصول کی جائے۔ بجلی کے بل کے ذریعے صفائی فیس وصولی پر بجلی کمپنیوں سے عید کے بعد مشاورت کی جائے گی۔ معاملات طے ہونے کی صورت میں صفائی کے نئے نظام میں شامل کیا جائے گا۔ دعوے، وعدے اور جرمانے سب بے سود۔ پنجاب حکومت چینی اور آٹا بحران ختم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ 70 روپے سرکاری ریٹ والی چینی مارکیٹ میں 90 روپے کلو تک پہنچ گئی، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی چینی اور آٹے کی فراہمی طلب کے مطابق ممکن نہ بنائی جا سکی۔ عید الاضحیٰ میں چند روز باقی، لیکن شہر میں آٹے اور چینی کا مسئلہ جوں کا توں ہی رہا۔ چینی کی سرکاری قیمت 70 روپے پر کسی بھی علاقے میں فروخت ممکن نہ ہو سکی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی چینی اور آٹے کی فراہمی التوا کا شکار رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں آٹا دستیاب نہیں، جبکہ چینی بھی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چینی کچھ بھی نہیں مل رہی، نہ آٹا مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ چینی جو 70 روپے انہوں نے کہا تھا وہ 85 روپے تک مل رہی ہے، وہ مل ہی نہیں رہی۔ ہماری تو یہی اپیل ہے حکومت سے کہ خدا را تھوڑا سا مہربانی کریں اور مہنگائی کو کم کریں کہ غریب آدمی جو ہے آسانی سے اپنے بچوں کے لیے کچھ کام کر سکے، کچھ کما سکے اور بچوں کو کھلا سکے۔ دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ فلور ملز کی جانب سے آٹے کی طلب کے مطابق فراہمی نہیں کی جا رہی، جبکہ چینی کا 50 کلو کا تھیلا 4400 روپے کا ہو چکا ہے، جس کے حساب سے چینی 86 روپے میں دکاندار کو مل رہی ہے۔ آٹے کا تو نام ہی نہ لیں۔ آٹا لینے جاتے ہیں ڈیلر جو ہے ہول سیلر، وہ کہتے ہیں آٹا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چینی ہے، اب یہ گھی وغیرہ اور مرچیں وغیرہ ہر چیز پہ مہنگائی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا اس پہ۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے آٹا سپلائی کو بہتر کرنا ہے تو سرکاری گندم کے کوٹے میں اضافہ کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، CT 42۔ عید قربان کی آمد شہر میں منافع خوروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور ضلع انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ سرکاری نیک نامے میں 7 سبزیاں مہنگی ہو چکی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ شہر میں منافع خوروں کا راج۔ عید قربان قریب آتے ہی منافع خوروں نے بھی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ ادرک کی 5 سینچریاں مکمل۔ مختلف علاقوں میں ادرک 500 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا، جبکہ پیاز 60، آلو 90، ٹماٹر 120، لہسن 300، لیمو 160 اور ہرا دھنیا 250 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں، جبکہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب آدمی کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک دن کچھ ریٹ ہوتا ہے، اس کے 2-4 دن کے بعد ریٹ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے دن گزر جاتا ہے کہ کیسے گزارا ہوگا۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا منافع کم رکھتے ہیں، لیکن انہیں سبزی منڈیوں سے ہی مہنگے داموں سبزیاں ملتی ہیں۔ اگر منڈیوں میں قیمتیں کم ہوں گی تو ہی وہ سستے داموں فروخت کر سکیں گے۔ پیچھے سے مہنگی ملے گی تو آگے مہنگی بیچے گی۔ کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عوام مہنگی کھا کے راضی بھی ہے، سستا مال نہیں کھائے گی۔ جب مہنگا ہوئے گا تو اس کے پیچھے لگ جائے گی اسپیڈ سے۔ سبزی فروشوں نے آنے والے دنوں میں سبزیوں کی قیمت میں مزید اضافے کا عندیہ دے دیا۔ کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، CT 42۔ آگے بڑھتے ہیں۔ STD نیوز نیٹ ورک میں مڈ ٹرم الیکشن سروے، نون لیگ نے میدان مار لیا۔
नून लीग 42% वोटों के साथ पहले नंबर पर रही। पीटीआई 30% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि 14% वोट लेकर पीपल्स पार्टी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 6% स्टाफ ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। नेटवर्क के स्टाफ ने अपनी पसंदीदा पार्टीज को वोट दिया। नून लीग 42% वोटों के साथ पहले नंबर पर, पीटीआई 30% वोटों के साथ दूसरे, जबकि पीपल्स पार्टी 14% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। 6% लोगों ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। एमक्यूएम को 4%, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2%, जबकि एमएमए को 1% वोट मिले। 2 साल पहले सिटी न्यूज नेटवर्क में होने वाले इलेक्शन सर्वे में पीटीआई ने कामयाबी हासिल की थी। सिटी न्यूज नेटवर्क के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी इलेक्शन का इनेकाद। किसी ने डाला बल्ले को वोट, कोई बना शेर का साथी और कौन रहा तीर के साथ, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क भर में मौजूद सिटी न्यूज नेटवर्क के दफातर में इलेक्शंस का इनेकाद किया गया। पोलिंग सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक जारी रही। सिटी न्यूज नेटवर्क के तमाम मुलाजमीन ने हक खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए वोट कास्ट किया। इस दौरान मुलाजमीन की जानिब से अपनी पसंदीदा जमात के हक में खूब नारेबाजी भी की गई। मुलाजमीन का जोशो खरोश देख कर यूँ महसूस होता था कि जैसे ये इलेक्शन सिटी न्यूज नेटवर्क के दफ्तर में नहीं बल्कि कौमी सतह पर आम इंतखाबात हो रहे हैं। एम्प्लॉइज का कहना है कि सिटी न्यूज नेटवर्क के ज़रिए तमाम इलेक्शंस का इनेकाद एक सेहतमंदाना सरगर्मी है। इदारों में इस किस्म की सरगर्मियों का इनेकाद होते रहना चाहिए। इस मौके पर कई मुलाजमीन की जानिब से मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से मिला जुला रद्द अमल नजर आया। कुछ मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया मगर अब वो हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं, जबकि कुछ मुलाजमीन ने उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत जल्द या बदेर अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। सिटी न्यूज नेटवर्क ने अपने दफातर में गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवा कर जहाँ मुलाजमीन को अपनी पसंदीदा जमात के हक में वोट डालने का मौका फराहम किया, तो वहीं मुलाजमीन की जमहूरी सोच को जिला भी बख्शी। बिलाशुबा ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद मुल्क में आजादी इजहार राय के लिए साजगार फिजा कायम करने में। वज़ीर-ए-आला पंजाब की लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए तकमील मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत फ्राहमी और निकासियाब और सॉलिंग की 6000 से ज़ायद स्कीमें 17 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि सूबा भर में लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों को शफाफियत से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। लोकल गवर्नमेंट के मजबूत निजाम से आवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। पंजाब हुकूमत जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहती है। उन्होंने बताया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जरिए आवाम को निचली सतह पर हकीकी नुमाइंदगी मुयसर होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने के लिए मिसाली सिस्टम लाएंगे। ईद पर सफाई के इंतजामात। हुकूमत ने अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत को शहर में सफाई का टास्क सौंप दिया है। पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत को अपने अपने हलकों में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की है, जबकि LWMC को अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर काम करने की भी हिदायत जारी कर दी। PTI अरकान असम्बली और कारकुन अपने अपने हलकों में ईद की सफाई के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स का भी इनेकाद करेंगे। LWMC कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए बैग्स हर हलके में फ्राहम करने की पाबंद होगी। शहर में पोलियो के साए बदस्तूर मंडला रहे हैं। सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई। पोलियो से बच्चे की मौत के बाद रावी टाउन की 6 यूनियन काउंसिल्स में चलाई गई खुसूसी मुहिम भी हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 7,500 से ज़ायद बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम रहे। हुकूमत और जिले शोबा सेहत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद लाहौर पर पोलियो वायरस के साए मंडला रहे हैं। 5 जुलाई को गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से हासिल किए गए सीवरेज के नमूनों में कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक करती है। शहर में रवा माह के दौरान पोलियो से 2.25 बरस के बच्चे मोहम्मद अली की मौत के बाद पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम से भी हदफ हासिल करने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। खुसूसी मुहिम के दौरान 6 यूनियन काउंसिल्स में 5 बरस की उम्र तक के 52,180 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। सिर्फ 44,653 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सके और 86% हदफ हासिल हुआ। पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान 5 बरस की उम्र तक के 7,000 से ज्यादा बच्चे कतरे पीने से महरूम रहे। जबकि शहर के मुर्दा खानों में 19 लावारिस लाशें मौजूद हैं। एक खातून और 18 नामालूम अफराद की लाशें गुज़श्ता 1 माह से मुर्दा खानों में रखी गई हैं। लावारिस लाशों की तदफीन शहर खामोशा में नहीं की जा रही, जिसकी वजह से डेड हाउस इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है।
म्यू अस्पताल के साथ मुंसलिक डेड हाउस में 16 लाशें, एक नामालूम खातून और 15 मर्दों की लाशें मौजूद हैं। जनाह अस्पताल के साथ मुंसलिक डेड हाउस में एक नामालूम शख्स की लाश और जनरल अस्पताल के साथ मुंसलिक डेड हाउस में 2 नामालूम अफराद की लाशें मौजूद हैं। एक माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल नामालूम लाशों की तदफीन नहीं की जा सकी। डेड हाउस इंतजामिया का कहना था कि शहर खमोशा में लावारिस लाशों की तदफीन बंद कर दी गई है। डेड हाउस इंतजामिया का मुतालबा है कि शहर खमोशा कब्रिस्तान फिर से लावारिस लाशों की तदफीन शुरू करे ताकि डेड हाउस इंतजामिया को परेशानी न हो। पाकिस्तान में बेरोजगार पीएचडी अफराद की तादाद 3000 तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। हायर एजुकेशन कमीशन पीएचडी अफराद को यूनिवर्सिटीज में नौकरियां दिलवाने में नाकाम हो चुका है। लाहौर समेत मुल्क भर में बेरोजगार पीएचडी अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। पीएचडी बेरोजगार की तादाद 3000 हो गई है। एचईसी ने 2009 में पीएचडी अफराद को यूनिवर्सिटीज में तैनात करने की पॉलिसी जारी की थी। ताहम एचईसी पीएचडी अफराद को नौकरियों की फराहमी के लिए अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। एक तरफ मुल्क की सरकारी यूनिवर्सिटीज में 45,000 नॉन पीएचडी असातिज़ा तैनात हैं, तो दूसरी जानिब पीएचडी अफराद रोजगार से महरूम हैं। पीएचडी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बेरोजगार अफराद की तफसीलात जारी कर दी हैं। एचईसी ने 11 साल बाद अपनी पॉलिसी में तब्दीली करते हुए जनवरी 2020 में बेरोजगार पीएचडी अफराद के लिए 1 महीना ट्रेनिंग की शर्त आयद की। पहले फेज में 200 पीएचडी अफराद की टीचिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मुकम्मल की गई। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कराने के बावजूद एचईसी यूनिवर्सिटीज में तैनातियां न करा सकी। पीएचडी एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सैयद हैदर अली कहते हैं कि विफाकी हुकूमत बेरोजगार पीएचडी अफराद के लिए पॉलिसी बनाए। इन बेरोजगार तालीम याफ्तगान के लिए इक्तसादी पैकेज का ऐलान किया जाए। जनरल हॉस्पिटल के इंतजामिया और पार्किंग ठेकेदार ने मरीजों को भी ना बख्शा। मरीजों और लवाहिकीन से 12 करोड़ रुपए की ओवर चार्जिंग की गई। जनरल अस्पताल की इंतजामिया और पार्किंग ठेकेदार ने मरीजों को भी मुआफ न किया। एंटी करप्शन ने जनरल अस्पताल की पार्किंग में ओवर चार्जिंग के जरिए मरीजों और लवाहिकीन से 12 करोड़ रुपए की ओवर चार्जिंग का सुराग लगाकर ठेकेदार और एएमएस एडमन समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैदियों और उनके वरसा की शिकायत आईजी जेल खानाजात खुद मॉनिटर करेंगे। इंस्पेक्टरेट और जेल में कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया गया है। कैदी और उनके वरसा ऑनलाइन शिकायत, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और दरख्वास्त की सूरत में जमा करवा सकेंगे। महकमा जेल खानाजात ने शिकायत के अजाले के लिए शिकायत मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम अगले हफ्ते से शुरू करने का फैसला किया है। लाहौर समेत पंजाब भर से कैदी हॉटलाइन और दरख्वास्त के जरिए शिकायत करेंगे। निगरान दौरे हुकूमत में रमजान पैकेज के तहत गंदम कोटे में करोड़ों रुपए की बेजाबगियों में मुलव्विस महकमा खुराक के अफसरान के गिर्द घेरा तंग। डीजी एंटी करप्शन मोहम्मद गौहर नफीस ने लाहौर समेत पंजाब भर में गिरफ्तारियों का अमल तेज करने की हिदायत कर दी है। 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब की गंदम स्कैंडल 2018 में बड़ी पेशरफ्त हुई। महकमा फूड के करप्ट अनासर के गिर्द घेरा तंग करके गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। महकमा फूड के 3 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स, 3 फूड इंस्पेक्टर्स, 3 सीनियर क्लर्क्स और 1 चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का 101 साला बुजुर्ग कैदी की सजा मुआफी की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। हाई कोर्ट ने होम डिपार्टमेंट के ज़रिए इत्तबा दरखास्त पर जल्द फैसला करने का हुक्म दिया है। जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी ने मेहदी खान की दरखास्त पर फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने होम डिपार्टमेंट को मेहदी खान की जेल मैनुअल रूल 146 के तहत दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया है। अदालती फैसलों के मुताबिक फैसले की मुसद्दका नकूल जारी होने के 3 हफ्तों में दरखास्त पर फैसला किया जाए। 3 मार्च 2020 को एआईजी पंजाब जेल खानाजात अदालत में पेश हुए। एआईजी पंजाब ने बताया कि मेहदी खान की दरखास्त होम डिपार्टमेंट में ज़रिए इत्तबा है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट की जानिब से पेश हुए और कहा कि दरखास्त पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाएगा। मेहदी खान ने अदालत से इस्तदा की कि उसकी तिब्बी हालत जांचने के मेडिकल बोर्ड कायम किया जाए। बूढ़े शख्स के साथ शादी करने पर बहरिया टाउन की उज़मा बीबी भागकर तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। लड़की ने बयान दिया कि वालिद ने उसका सौदा किया, अब जबरदस्ती उसके साथ भिजवाना चाहता है। अदालत ने लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। रावी रोड मालीपुर बाजार में नागरिक सीवरेज के निजाम पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। वासा हुकाम को बार बार नोटिस के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही।
ये मंजर किसी जौहड़ का नहीं बल्कि ये रावी रोड दातागंज बख्श टाउन में मालीपुरा बाजार का इलाका है। यहाँ नाकिस सीवरेज का निजाम और उबलते गटर लोगों के लिए दर्दे सर बन गए हैं। मजबूर होकर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में काफी अरसे से यही सूरत हाल है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं जबकि बदबू और ताफुन से जीना मुहाल हो गया, मगर कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं। मैं खुद जा रहा हूँ, मैं रोज कंप्लेन करता हूँ, रात ड्यूटी करता हूँ, सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक उधर रहता हूँ। ये कहा जाता है कि आप जाएं और अमला आ रहा है। यहाँ तक के घरों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी गंदा आ रही है, वजू करने की परेशानी है। अब देखा काफ़ी देर हो गई। हाँ, याद करें, मतलब इसको सही करवाएं। बड़े मुश्किल हो रही है, सारे बच्चे बीमार हो गए, गलियां गंद पे आ गया, बोए पानी पी रहे हैं। मुसाहिरीन का कहना है कि वो वासा के दफ्तर चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। एहतजाज मजबूरी बन चुका है। अगर अब भी कोई हल ना निकाला गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन राना अजीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर LDA स्टडी अपार्टमेंट्स के तामीराती मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। नए बजट में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मंसूबे को LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का नाम दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्बन प्लानिंग राना टीका खान की ज़ेर सदारत अपार्टमेंट्स स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर हबीबुल हक रंधावा, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी, चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद और डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर समेत मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि LDA सिटी में 8,500 कैनाल अराजी पर 35,000 रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। यहाँ 5 मुख्तलिफ कैटेगरियों के अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे, जिनका रकबा 650 मुरब्बा फीट से 2200 मुरब्बा फीट तक होगा। अपार्टमेंट्स के लेआउट प्लान की मंजूरी LDA के गवर्निंग बॉडी से हासिल की जाएगी। मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हुकूमत फनकारों से मोहब्बत करे, उनके साथ फनकारियां ना करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। चेयरमैन कैसर सनाउल्ला की सरबराही में वफ़द में इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया, आसिफ इकबाल, ताहिर अंजुम, शाहिद खान और मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। वफ़द ने स्टेज इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब हुकूमत पर जोर दिया कि ईद उल अज़हा से कबल थिएटर्स खोलकर माहौल को खुशगवार बनाया जाए। फनकार बरादरी अवाम को मौजूदा मायूसी और डिप्रेशन से निकाल सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अगर ईद पर SOPs पर अमल दरामद करके महदूद पैमाने पर स्टेज ड्रामा किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की दोबारा बहाली के लिए SOPs के तहत काम किया जाना चाहिए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि अपोजिशन की APC से मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की डिप्टी कमिश्नरी निकल गई है। अपोजिशन के मिसाक़े जमहूरियत में इंडिया की हिमायत शामिल है। अलहमरा हॉल में मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि पूरी कौम ने अपोजिशन की APC से मौलाना फजलुर रहमान के भाई की डिप्टी कमिश्नरी को निकलते देख लिया है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के 50 अरकान हुकूमत से राब्ते में हैं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कुलभूषण जादेव के मामले में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल कराना नागुज़ीर था। पंजाब जुडिशल अकेडमी में तरबियत मुकम्मल करने वाले एडिशनल सेशन जजेस में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान की खुसूसी शिरकत। कहते हैं कि जजेस पर वक्त फैसले करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना सकते हैं। पंजाब जुडिशल अकेडमी से 3 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 8 एडिशनल सेशन जजेस को तारीफी सर्टिफिकेट देने की तकरीब हुई। आपने यहाँ जो कुछ सीखा वो सब अकेडमी का किया हुआ था, उसमें सब कुछ काश अकेडमी में थी। जो चीज़ रह गई, जो चीज़ मिस हो गई, उसके लिए हम प्रॉपर टाइम ना दे सके आपको। यहाँ पर ये आपसे गुजारिश है कि आप हमें इस 3 माह को हमें क्रिटिक के तौर पर देखें।
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का 19वां इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सिंडिकेट इजलास के दौरान लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन के साथ तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक रिसर्च मैनेजमेंट एंड फाइनेंस कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सिलवत सईद, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर समेत दीगर सिंडिकेट मेंबरान ने भी शिरकत की। जबकि सर्विसेज हॉस्पिटल में कोरोना आईसीयू में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स की खिदमात को सराहने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद शीमा और एमएस डॉक्टर इफ्तिखार ने डॉक्टर्स को यादगारी शील्ड्स और तोहफे दिए। सर्विसेज हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए कायम किए गए आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड्स में खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज की खिदमात को सराहने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। और खेल के मैदान से खबर यह है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर की पाकिस्तान बॉक्सिंग में एक मरतबा फिर धुआंधार एंट्री। आबिद बॉक्सर को लाहौर डिवीजन बॉक्सिंग का चेयरमैन बना दिया गया है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी है, जिसके पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की बॉडीज का इंतखाब किया गया है। दूसरे मरहले में सूबाई और तीसरे मरहले में फेडरेशन के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। और अभी आपको बताएं, वजीर खेल पंजाब राय तैमूर खान भट्टी से साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी की मुलाकात हुई। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के बाद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ काम करूंगा। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी ने पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर वजीर खेल और शाहिद आफरीदी ने खेलों के फरोग के लिए मिलकर काम करने का इरादा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।